and welcome back. So today we are starting our new chapter, that is chapter 1 of your science 1 syllabus, and the name of the chapter is gravitation. So this is the first part of this chapter and this is the first video, and I will try to complete this chapter in 4 or 5 videos maybe, along with the numerical problems. Okay, so in this video that what we are going to study is some basic concepts and something that we have to recall from our previous standards that we have already studied about gravitation and the concepts related to gravitation, and then we will give a short introduction about gravitation, what is the gravitation, how it was discovered, and force and motion. We will talk something about force and motion, and then circular motion and the centripetal force, and then we will speak about Kepler's laws of planetary motion. So without wasting time, let's get started. So first of all, we need to recall some basic things or some questions that we have to answer in every chapter. So first let's see what is the actual syllabus that we are going to study in this chapter. So what we are going to see in this chapter is have been given here. So first we will see the gravitation introduction, then circular and centripetal force, and circular motion and centripetal force, then Kepler's laws, and then Newton's universal law of gravitation, acceleration due to gravity or gravitational force on the earth, free fall, and then escape velocity. So it is a pretty interesting and activity based and very, what we can say, that is involving chapter. So physics is very involving and very interesting as we compare to chemistry or biology. Physics is very interesting because it involves quizzes and it involves the use of our brain. So it is going to be very interesting. So let's start. So what is the first question that it is asking? What are the effects of force acting on an object? Suppose there is an object. So suppose this is a wooden block. We are acting a force. We are acting a force on it from the left side to the right side. What will happen? It will, suppose this box is at rest position, it is not moving, it is in stationary position, it is not moving. What will happen? It will lead to motion in the डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर कोई चीज़ रेस्ट पोजीशन में, अगर हम उसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की वजह से उसमें क्या आ जाएगा? मोशन आएगा. और कौन सी डायरेक्शन में आएगा मोशन? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में उसको मोशन आएगा. अब यहाँ पर ये मोशन में है. अब मैं एक और दूसरा इंसान यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जाके मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर फिर से ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूँ. उतने ही मैग्नीट्यूड का, उतना ही फोर्स अप्लाई करता हूँ जितना मैंने इसको मूव करने के लिए अप्लाई किया था. क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, है ना. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर उसको हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रुक जाता है. तो ऑब्जेक्ट कैन बी caused into motion, or if an object is in motion it can be stopped by applying a particular external force in a particular direction. So this is the effect of force that we have studied in our previous standards from 7 standards, 7, 8, 9. In the 3 standards we have studied a lot about forces and force. In the previous standard we studied about laws of motion. Newton's laws of motion was the first chapter that we discussed in very detail. अब हम लोग यहाँ पे कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर यू फैमिलियर अबाउट? आपको कौन से फोर्सेज के बारे में पता है? तो मुझे तो बहुत सारे फोर्सेज के बारे में पता है, आपको रिकॉल करना है एक्चुअली. तो यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ टाइम के लिए सोचो कि क्या फोर्सेज हमको पता है. आई नो आपके दिमाग में वही फोर्सेज आएंगे जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं. इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स होता है, पुश और पुल, ये एक तरीके का फोर्स होता है. पुश कर रहे हैं हम लोग, बॉडी से दूर की तरफ जा रहे हैं, पुश और पुल एक तरीके का फोर्स है. उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स एक होता है कि ग्रेविटी अपने को नीचे खींचती है. थ्रस्ट जो होता है जो हमको ऊपर की तरफ लेके जाता है, वो एक फोर्स होती है. ठीक है, तो बहुत सारे फोर्सेस हमारे आसपास होती है. इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है. सो दीज आर सम काइंड्स ऑफ फोर्सेज दैट वी आर अवेयर अबाउट. नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको क्या पता है? सो अगर हम क्लास में होते तो हम ज़रूर इंटरेक्ट करते थे, इसके बारे में डिस्कस करते थे. अभी फ़िलहाल मैं बता देता हूँ आप लोगों को. तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमको ज़्यादा इतना नहीं पता, जैसे जितना हमको पता है कि भाई हमको ये क्या फोर्स क्या है, एक अर्थ के ऊपर ऐसा फोर्स है जो हमको
स्टेबलाइज करने के लिए, अपने अर्थ के सरफेस पर टिके रहने के लिए हेल्पफुल है। हमको एक पर्टिकुलर फोर्स है जो नीचे की तरफ खींचता है, अर्थ की तरफ खींचता है, ये हमको इतना पता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच लिए। तो हम लोगों ने कभी पढ़ा है कि भाई बचपन में अर्थ के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जो हम हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता रहता है। तो इसके बारे में ही हम लोग अभी देखने वाले हैं। ग्रेविटेशन को हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ग्रेविटेशन से रिलेटेड फैक्टर्स क्या है, ये ग्रेविटेशन जो आपका बेसिस है, ये ग्रेविटेशन पूरा का पूरा आपके स्पेस साइंस से रिलेटेड है। मतलब आगे चल के अगर आप स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो ये उसका बेस है। मतलब नींव बोलते हैं ना, घर की नींव रखते हैं जब हम, तो ये उसका, ये जो चैप्टर है ना, ये ग्रेविटेशन, ये उसका एक बेसिक पार्ट है, आपका एलिमेंट्री पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है आपका स्पेस साइंस का। स्पेस साइंस जितनी भी यूज़ होती है तो उसमें ग्रेविटेशन का इस्तेमाल हम लोग, जितने भी प्रिंसिपल्स और लॉज इसके अंदर सीखने वाले हैं, सब हमको स्पेस साइंस में हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन ग्रेविटेशन के बारे में। अब उसके बाद हम, ये बेसिक हो गया थोड़ा सा, एक्चुअली रिकॉल कर लिया हमने कुछ जो चीज़ें हमको पता है। उसके बाद थोड़ा सा हम बताते हैं कि भाई ग्रेविटेशन के बारे में क्या है, इंट्रोडक्शन। तो ग्रेविटेशन का सबसे पहले वैसे तो इन्वेंशन बोला जाता है एक बुक्स के अकॉर्डिंग कि ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने किया था। सर आइजैक न्यूटन, ये देखो इनका चेहरा दिया हुआ है, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, आप बहुत डिटेल दी गई है आपके बुक में, तो इसको पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, तो जस्ट आपको दिखाने के लिए दिया है कि यहाँ पर ये सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में बताने वाले इंसान बुक्स के अकॉर्डिंग कौन थे, सर आइजैक न्यूटन थे। अब हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम्स है, इंडियन जो वेद पुराण है, उसमें हम लोग, अब इन्होंने तो बहुत बाद में, ये तो पैदा ही तब नहीं हुए थे, 1642 में तो पैदा ही हुए थे। ये हमने 1515वीं सदी में, 14वीं सदी में हमने बुक्स लिख के रखे हैं, वेद पुराण लिख के रखे हैं हमारे, जिसमें हमने ग्रेविटी की बात करी है, हमने 9 ग्रहों की बात की है। जब इनको टेलीस्कोप की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी तब से हम 9 ग्रहों की पूजा करते आ रहे हैं। तो हमको, हमारा जो इंडियन साइंस था वो काफ़ी दुनिया से आगे था, लेकिन कभी भी इसके बारे में बात नहीं की जाती। अभी आपको मैं बताऊं कि हमारा जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा में डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन हैज़ बीन रिटन, लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में कि अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये देखो कितना, उनके पास टेलीस्कोप्स तो नहीं थे, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं थे, फिर उन्होंने उस टाइम पर कैसे कैलकुलेट कर लिया वेद व्यास ने, तो दिमाग लगाओ। तो उनके पास भी कुछ साइंस तो थी, कैलकुलेशंस तो थे, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, फिजिक्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने कैलकुलेट किया था। इसके बारे में थोड़ा सा ना डिटेल में मैं बात करूँगा आपके साथ, एक अगला चैप्टर हमारा आने वाला है, फिलहाल तो नहीं, हम लोग बाद में बात करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन हाउ कैन बी कैलकुलेटेड। ये हम देखेंगे हमारे लेंसेज पार्ट में, लेंसेज वाले चैप्टर में देखेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल ग्रेविटेशन पे आते हैं। तो ग्रेविटेशन का जो डिस्कवरी था, जो डिस्कवर हुआ था, अब देखो डिस्कवरी और इन्वेंशन में दो क्या फ़र्क होता है। डिस्कवरी वो होती है जो ऑलरेडी थी और बाद में हमको पता चला, ठीक है, वो चीज़ हमने बनाई नहीं। और इन्वेंशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्रिएट करना, कोई नई चीज़ क्रिएट करना, उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं। डिस्कवरी मतलब उसको हमने ढूंढा। तो डिस्कवरी का श्रेय जो जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो किसको जाता है, सर आइजैक न्यूटन को जाता है। ग्रेविटी कैसे क्या हुआ, इसकी स्टोरी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्या फालतू की स्टोरी है लेकिन देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो सर आइजैक न्यूटन है, ये बैठे थे एक दिन पेड़ के नीचे। अब लेक्चर बंक करके बैठे थे, कॉलेज में कोई अच्छा लेक्चर तो चल नहीं रहा था, मास्टर ने भगा दिया इसको, फालतू का सवाल पूछता था, ये भगा दिया उसको क्लास के बाहर, जाके पेड़ के नीचे बैठ गया। काय का पेड़ था ये, एप्पल का पेड़ था। तो बैठा बैठा कुछ तो भी अपने ख्यालों में खोया है। अचानक से क्या हुआ, ऊपर से एक एप्पल गिरा, ये एप्पल ऐसा नीचे गिरा। ठीक है, ये एप्पल ऐसा नीचे गिरा तो इसने देखा कि अरे ये तो ऊपर से नीचे गिरा, क्यों गिरा, क्या हुआ, कैसे हुआ, सोचने लगा ऐसा क्यों हुआ, ये नीचे क्यों आया, ये ऐसा ऊपर उड़ के क्यों नहीं गया, हवा तो चल रही है, हवा के साथ ये ऐसा उड़ के क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, ये ऐसा क्यों नहीं गया, ऐसा क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया ये। तो ये दिमाग लगाने लगा, भाई क्या हुआ, ऐसे क्या है, कोई तो भी, कुछ तो भी है यहाँ पर, रीज़न है कुछ ना कुछ तो। फिर उसको दिमाग लगाया, फिर बहुत दिन सोचने के बाद उसके दिमाग में आई कि नहीं, कुछ तो भी एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है अर्थ के बीचों बीच जो इस एप्पल को नीचे की तरफ खींच रहा। ठीक है, ये इसको नीचे बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन में नीचे उसको खींच रहा है, जो कुछ ना कुछ सेंटर में, अर्थ के कोर के बिल्कुल बीचों बीच कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इसके बाद, इस वजह से, इस इंसिडेंट के बाद डिस्कवरी हुई थी
इसकी ग्रेविटेशन की। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर ये एप्पल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो सकता है तो ये जो मून है, यहाँ पर ऊपर मून दिख रहा अपने को आसमान में, तो जो फार्दर ऑब्जेक्ट है जैसे कि मून या सन है, जो जितने दूसरे या फिर दूसरा कोई प्लेनेट है, तो क्या अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इनको भी इन्फ्लुएंस करता है, क्या इनके ऊपर भी कोई असर डालता है, क्या इनके ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ता है कि ये क्या कोई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, ये मून के ऊपर भी कोई इफेक्ट डालता होगा, क्या उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है ये। तो इनके दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो इन्होंने इसके बाद स्टडी करना स्टार्ट कर दिया ग्रेविटेशन को। मतलब इसको ही अपने लाइफ का एम बना लिया कि हमको ग्रेविटेशन के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कवरी करना है, कुछ ना कुछ अपने को पता करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है अपने आसपास। और ये जो अपना मून है ये गोल गोल घूमता है, अपने को पता है अर्थ के आसपास, तो ये क्यों घूमता क्यों है, नीचे क्यों नहीं गिरता, ये ऐसा क्यों नहीं होता कि ये मून कभी जैसे एप्पल नीचे आके गिर गया धड़ाम से, वैसे मून क्यों नहीं आके नीचे गिर जाता। सोचो, हो सकता है ऐसा कुछ। तो इनके दिमाग में ऐसे बहुत सारे फितूर आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए क्या करना। तो इन्होंने स्टडी की इसके ऊपर कि क्या होता है ग्रेविटेशन और डिटेल में। इसके आगे इसके लिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन की स्टडी करने के बाद न्यूटन ने कुछ अपने लॉज दिए थे, जैसे हमने यहाँ बात की ना इंट्रोडक्शन में, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके बारे में इन्होंने डिटेल स्टडी करके यहाँ पे अपनी थ्योरी दी है। तो पहले उसके पहले हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं कि उसके पहले भी क्या ग्रेविटेशन या फिर प्लैनेट्स के बारे में कोई और बात कर रहा था। ग्रेविटेशन के बारे में तो कोई और बात नहीं कर रहा था, लेकिन प्लैनेट्स और उसके मोशन के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत होती रहती थी, लोगों को पता था। अभी ये जो आपकी डिस्कवरी थी, गैलीलियो ने जो डिस्कवर किया था, आपका क्या नाम है इसका, टेलीस्कोप है ना। टेलीस्कोप से हम लोगों ने बाद में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। टेलीस्कोप लगभग 16th सेंचुरी में अपने को मिला। 16th सेंचुरी मतलब 1600 कुछ 1500 कुछ के बाद, 1500 ईयर 1500s के बाद हमको डिस्कवर किया था, हमने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था गैलीलियो ने। तो उसके पहले से ही लेकिन बहुत सारे जो साइंटिस्ट और ऑब्जर्वर्स थे, स्पेस ऑब्जर्वर्स थे, वो लोग डिस्कस करते थे प्लैनेट के मोशन के बारे में कि भाई कैसा होगा, अर्थ राउंड है कि नहीं है। किसी ने बोल दिया अर्थ स्क्वायर है, तो लोगों ने पहले सब लोगों को पहले लगता था कि अर्थ स्क्वायर है। बाद में गैलीलियो ने बोला था कि भाई अर्थ राउंड है। फिर अब बाद में पता चला कि ये, फिर दिमाग लगाने लगे इक्लिप्स क्यों होता है, ये इक्लिप्स मतलब ग्रहण लगना क्यों होता है। तो बहुत सारी बातें जो क्वेश्चंस थे, क्वेरी, मतलब ऐसा लगता था एक तरीके से बोलते क्यूरियोसिटी होती है कि हमको जानना था स्पेस में क्या है, इस दुनिया के बाहर क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस होते थे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने पहले भी प्लैनेटरी मोशंस को स्टडी किया था, तो बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल हो गया था। ठीक है, अब उसके पहले हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा और दूसरी बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं एक बार हम, फिर हम लोग जाएंगे प्लैनेटरी मोशन के ऊपर, केपलर ने क्या बोला और दूसरे साइंटिस्ट ने क्या स्टडी किया था। तो उसके पहले है फोर्स एंड मोशन। फोर्स और मोशन के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। ये फोर्स एंड मोशन एक्चुअली हमारा 8th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, तो ये आपको थोड़ा सा फिर से आया है कि आपको ये, क्योंकि आपको ये बेसिक काम में आएगा ये चैप्टर में। तो इसमें क्या बोला है कि कोई भी पुश या पुल होता है, या हम लिफ्ट करते हैं किसी चीज़ को, अपने से दूर की तरफ धक्का देना या उसको अपनी तरफ खींचना या उसको ऊपर की ओर उठाना, इसमें हर चीज़ में क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एक तरीके का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए जो आपको एनर्जी लगती है या उसको अप्लाई जब हम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। जिसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से या तो किसी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो उसमें मोशन आएगा, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट पोजिशन में चला जाएगा, रुक जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स जरूरी है अगर आपको किसी चीज़ की स्पीड चेंज करनी है या डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हमको क्या चाहिए, फोर्स अप्लाई करना ज़रूरी है। वहाँ पे फोर्स क्या कर सकता है, हमको हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मुझे इसको ये डायरेक्शन में मूव कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये साइड से इसको ऐसा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो ये ऐसा, यहाँ से ये ऐसा आ रहा था, मुझे इसको क्या करना है, ये डायरेक्शन में लेके जाना है थोड़ा सा, तो मैं ये डायरेक्शन से यहाँ पर इस पॉइंट पर उसको फोर्स अप्लाई करूँगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब हमको उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए और स्पीड चेंज करने के लिए क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए। उसके बाद हमने बात करनी है यहाँ पे मोशन। फोर्स एंड मोशन इज caused बाय फोर्स एंड द मोशन caused बाय इट आर वेल एक्सप्लेन बाय द न्यूटन्स लॉ। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने पिछले साल बहुत डिटेल में एक सेपरेट चैप्टर स्टडी किया था कि न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए थे उसके बारे में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये सब बहुत सारे डेरिवेशन वगैरह भी देखे थे, न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो वो सब आप लोगों को पता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको पता है सारे।
ये बेसिक थी। अब उसके बाद सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें क्या चीज़ें होती है। तो सर्कुलर मोशन में यहाँ पर देखो ये एक्टिविटी बताई गई है आप लोगों को। एक क्या करना है, एक धागा लेना है, स्ट्रिंग लेना है, उससे एक सर्कुलर बॉल बांध देनी है और उसको ऊपर की साइड, जैसे ये लड़की घुमा रही है ना, ऐसा घुमाना उसको। इमेजिन करो आप ऐसा इसको घुमा रहे हो, यू आर मूविंग द बॉल इन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस। सो क्या हो रहा है, क्या आप इसके ऊपर क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं हमारे बुक में, तो इन्होंने क्या बोला है कि क्या आप कोई ऐसा पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हो क्या इसके ऊपर, इसको इस मोशन में रखने के लिए। स्ट्रिंग में कोई ऐसा फोर्स है क्या जिसकी मदद से आप इसको घुमा रहे हो, कहाँ किस तरफ। अभी जो मोशन तो दिख रहा है ना, ये गोल गोल ऐसा मोशन तो दिख रहा है अपने को, लेकिन मोशन क्यों होता है, हमने क्या बात की, जब तक कोई फोर्स नहीं होगा तब तक कोई मोशन नहीं होगा। तो किस वो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, किस एक्चुअली एग्जैक्टली वो फोर्स कहाँ किस डायरेक्शन में कैसे अप्लाई हो रहा है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा सोचो, अगर दिमाग लगाओगे, प्रैक्टिकली करके देखना इस चीज़ को, ये एक्टिविटी को, तो आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आप जो स्ट्रिंग पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो टूवर्ड्स दी सेंटर, कुछ इस तरीके से सेंटर, मतलब उसको अंदर की तरफ खींच रहे हो, सेंटर की तरफ आप स्ट्रिंग को पुल कर रहे हो। ठीक है, सेंटर की तरफ अगर आप पुल करोगे तो वो अपने आप वो सर्कल की तरफ घूमता है, सर्कुलर पाथ में वो उसको स्टोन को घुमाएगा। ठीक है, तो इस सेंटर की तरफ आने वाले फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्री मतलब सेंटर और पिटल मतलब सीकिंग, सीकिंग मतलब उसकी तरफ जाने वाला। तो सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है और उस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है, उसकी वजह से सर्कुलर मोशन आ रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये सर्कल है, तो ये जो फोर्स एक्ट हो रहा होता है ये अंदर से बाहर की तरफ एक्ट हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे फिजिक्स ऑफ क्लास 11th क्लास में हम लोग फिजिक्स में बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्सेस होते हैं, आपके सिलेबस में सेंट्रीपिटल के बारे में ही बताया गया है, मैं सेंट्रीफ्यूगल भी आपको बता रहा हूँ। सेंट्रीपिटल क्या होता है, टूवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स सर्कल सेंटर, सॉरी यहाँ पे सेंटर चाहिए, टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंटर की तरफ अप्लाई होने वाला फोर्स जो है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो सेंटर की तरफ अप्लाई होने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंटर से दूर की तरफ अप्लाई होने वाला फोर्स जो है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टूवर्ड्स द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है सर्कुलर मोशन में तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि आप किसी सर्कुलर, अब एक बस में जा रहे हो और एक बस जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, ट्रेन जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव हो रही है, फास्टली मूव हो रही है, तो हमारे ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है तो जो हमको सेंटर से दूर फेंकता है ना, जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा उससे दूर की तरफ फेंकेगा, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, कब बात करेंगे, 11th स्टैंडर्ड अगर आप साइंस लेते हो तो। इफ़ वी रिलीज द ऑब्जेक्ट, अब क्या कर लिया ये ऑब्जेक्ट, अब इसको फोर्स को स्टॉप भी करना होना चाहिए, करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कोई जैसे हमने बात की, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसको रोकने के लिए भी एक पर्टिकुलर फोर्स चाहिए, तो इसको रोकेंगे कैसे आप। यहाँ पर आप सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से ये इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है, तो अगर आपको रोकना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको स्ट्रिंग को छोड़ देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को छोड़ दो। छोड़ दोगे तो क्या होगा, जिस पॉइंट पर छोड़ोगे, सपोज जब आपने छोड़ा तो वो इस पॉइंट पर था, ये जो पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, इस पॉइंट पर था, और इसको जैसे ही छोड़ोगे तो कहाँ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, जैसा एरो बताया गया है ना, यहाँ पर ये एरो बताया गया है, इस एरो की डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट फ्लाई होगा, मूव होके चले जाएगा। या अगर यहाँ इस पॉइंट पर आपने छोड़ा, अगर उसको रिलीज किया तो ये ऐसा यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में वो फ्लाई होता हुआ आपको दिखेगा, छूट जाएगा, वो उड़ जाएगा उस डायरेक्शन में। तो ऐसा क्यों होता है, इसको बोलते हैं हम कि टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंट है ना ये, देखो इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, आपके सर्कल की टेंजेंट है, आपने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन अ circle on the circumference of a circle and is perpendicular to the radius of the circle is called as tangent। तो ये जो मोशन होता है स्ट्रिंग को छोड़ने के बाद, तो ये होता है टेंजेंशियल मोशन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है ये, इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से वो स्टोन फ्लाई करके वहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि वहाँ पर इस ऐसा क्यों हुआ, फोर्स तो हम लोग इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे, तो ये पॉइंट पर इसने अपने तरफ आना चाहिए था,
क्योंकि जो फोर्स था वो अपने तरफ के डायरेक्शन में था ना, सेंटर में था वो, तो इसने क्या करना चाहिए था, इसने अपनी डायरेक्शन में आना चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये इस डायरेक्शन में गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी थी ना वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस डायरेक्शन में थी। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हमेशा उसी डायरेक्शन में हमारा मोशन भी दिखे, कभी कभी थोड़ा सा अलग भी होता है। इसके बारे में भी हमने थोड़ा डिटेल में बात की थी, फोर्स और मोशन में हमने इसके बारे में 9th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इस डायरेक्शन में फोर्स वेलोसिटी है, इसलिए जब हम उसको छोड़ते हैं तो ये इसी डायरेक्शन में मूव होता रहता है जो स्टोन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में इन्फॉर्मेशन थी और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अब ये क्यों स्टडी किया हमने, क्योंकि हमको क्या स्टडी करना है, हमारे प्लैनेट्स का मोशन। हमारा जो अर्थ है वो सन के आसपास ऐसा क्यों घूम रहा है, कौन सा उसका ट्रेजेक्टरी है, क्या पाथ है, क्या वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्या वो किसी और शेप में घूम रहा है। अच्छा, तो फोर्स कैसा एक्ट हो रहा है उसके ऊपर, वहीं उसी डायरेक्शन में हर साल क्यों घूमता है वो, कोई डायरेक्शन पाथ ऑर्बिट चेंज क्यों नहीं करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में पता होना जरूरी था, इसलिए हमने पहले सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम आते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो जैसे मैंने बात की पहले भी कि प्लैनेट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी लोगों को कि भाई प्लैनेट्स क्या और कोई प्लैनेट्स भी है अर्थ के बाहर, क्या है स्पेस में, किस वजह से ये अपन लूनार इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स ऑब्जर्व करते हैं, या स्टार्स क्या है, स्टार्स हमसे छोटे हैं कि बड़े हैं मतलब अर्थ से। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे साइंटिस्ट और ऑब्जर्वर्स के माइंड में रहता था हमेशा। फिर जब गैलीलियो ने डिस्कवर किया अपना टेलीस्कोप, फिर उसमें से उसके बाद तो जो डेटा अवेलेबल था और उसमें इंक्रीमेंट हो गया कि क्या चीज़ें, उन्होंने टेलीस्कोप से क्लियरली सब चीज़ें कंफर्म की और बहुत सारी चीज़ें बाद में अवेलेबल हो गई। फिर बाद में आए केपलर, जोहानेस केपलर नाम के एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन भी थे ये। तो इन्होंने अपने लॉज दिए प्लैनेट्स को डिफाइन करने के लिए, प्लैनेट के जो मोशन होता है, प्लैनेट किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने अपने 3 लॉज दिए, जिनको हम बोलते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ये है केपलर, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके नॉलेज के लिए, जस्ट आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, हम कुछ एक्सप्लेनेशन वाली बात तो इसमें है नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं केपलर्स लॉस। तो केपलर लॉ स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि इक्लिप्स एक शेप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अलग अलग शेप्स आपको पता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और ट्राइंगल, ये सारे आपको शेप पता है। अब एक और शेप के बारे में जान लो, इक्लिप्स और ओवल में डिफरेंस है। ओवल ऐसा होता है अंडा आकार, और इक्लिप्स थोड़ा सा अंडे आकार, मतलब ओवल और सर्कुलर दोनों के बीच में होता है थोड़ा सा। तो इक्लिप्स शेप बनाने के लिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपको, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। तो क्या करना है आपको, अगर एक कोन है, कोन को अगर आप ऐसा परपेंडिकुलरली वहाँ पे अगर ये इस तरीके से कुछ आप अगर एक कार्डबोर्ड अगर उसमें से पास करोगे तो वो जो कट होने का शेप होगा उसका वो सर्कुलर होता है। ठीक है, कोन को कट करना है कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलरली, जैसा आपको यहाँ पे मैंने सर्कल करके बताया, ये वाला कुछ इस तरीके से कट करोगे तो आपको सर्कल मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से स्लांटिंग वे में अगर आप उसमें से प्लेन पास करोगे तो जो शेप आपको मिलता है ना, ये कुछ इस तरीके का शेप, ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ये कुछ इस तरीके का शेप आपको दिखने को मिलता है, जिसको हम इस शेप को क्या बोलते हैं, इलिप्स। ऐसे वाले शेप को हम बोलते हैं इलिप्स। और ये इलिप्स में जब हम बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की, अगर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 फोकस होते हैं। जैसे सेंटर होता है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल में एक प्रिंसिपल सेंटर होता है या फोकस होता है, लेकिन ये इलिप्स में 2 फोकसेस होते हैं, फोकस F1 और F2, ये 2 फोकसेस हमको देखने को मिल जाते हैं, इसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से मेजर किए हुए जो डिस्टेंसेज है, सपोज ये A पॉइंट है, तो ये अगर हम निकाल लें यहाँ से F1A और F2A, इन दोनों को प्लस कर लो, फिर ये एक दूसरा पॉइंट है, B पॉइंट है, F1B और F2B, ये जो डिस्टेंसेज है इनको प्लस कर लो, तो आपको पता चलेगा कि F1A प्लस F2A इज इक्वल्स टू F1B प्लस F2B। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से आप दोनों फोकसेस के डिस्टेंसेस को प्लस कर लोगे, अगर सम कर लोगे दोनों का, द सम ऑफ द डिस्टेंसेस टू द 2 फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट। मतलब आप कहीं से भी कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, उसको ज्वाइन कर दो दोनों फोकस से, और दोनों फोकसेस के और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल के उन दोनों को प्लस कर लो, तो आपको ये कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। हर पॉइंट के लिए आपको ऐसी ही वैल्यू मिलेगी, सेम टू सेम।
दोनों को प्लस करने के बाद। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़ इलिप्स के बारे में। अब हम आते हैं मेन हमारा जो केपलर ने क्या लॉस दिए थे। सबसे पहले जो लॉ दिया था केपलर ने, ये बताया था द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट चाहिए ये, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब जो ये सपोज ये ए प्लैनेट है, ठीक है, ये यहाँ पर ये प्लैनेट दिया गया है और ये आपका सन है। यहाँ पर दो फोकस होते हैं ना, एक यहाँ पर फोकस है और एक यहाँ पर जहाँ पर सन दिखाया गया है। तो क्या होता है कि पहले लॉ में क्या बोला है कि सन जो होता है वो एक इलिप्स के पर्टिकुलर एक फोकस पे रहेगा, दोनों में से किसी भी एक पर्टिकुलर फोकस पे सन रहेगा, और जो आपका प्लैनेट है वो उसका जो ऑर्बिट होता है, जो सर्कुलर पाथ होता है सन के अराउंड, सर्कुलर नहीं बोलेंगे, वो एक्चुअली इलिप्स होता है। इलिप्टिकल शेप में जो प्लैनेट्स है वो सन के आसपास रिवॉल्व होते हैं, सर्कुलर पाथ नहीं है, सर्कुलर मोशन नहीं है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन के आसपास घूमते हैं, कुछ इस तरीके से जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है केपलर का, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब क्या बोला है दूसरे लॉ में, तो क्या करना है अपने को, ये सन जो है और ये जो प्लैनेट है इन दोनों के बीच में लाइन ज्वाइन कर लो, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ज्वाइन किया, या फिर आप सपोज ये प्लैनेट ये एफ है ना, ये हमारा एफ, ये एफ पॉइंट पर अगर आपका प्लैनेट है तो यहाँ से लेके एक लाइन ज्वाइन कर लो एफ पॉइंट पर। तो ये लाइन ज्वाइन कर लो। अब इसको क्या करना है अपने को, टाइम नोट करना है वॉच में कि कितने पर्टिकुलर, सपोज मैं अगर बात करूँ 3 घंटे में ये कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है। तो 3 घंटे में सपोज ये एफ से लेके ई तक ऑब्जेक्ट आया, अपना जो प्लैनेट है वो एफ से लेके कहाँ तक पहुँचा, ये ई तक पहुँचा, और इन दोनों का लाइन ज्वाइन कर दिया। और ये लाइन ज्वाइन कर दिया उसके बाद यहाँ पे ये जो अपने को शेडेड पोर्शन मिल रहा है इसका एरिया निकाल लिया। ठीक है, क्या कर दिया, शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल लिया। फिर क्या किया, कुछ टाइम के बाद 8-10 घंटे जाने दिए, फिर से ये सेम एक्टिविटी रिपीट किया इस डी पॉइंट पर। अब प्लैनेट कहाँ पहुँच गया, डी पॉइंट पर पहुँच गया। ठीक है, अब उसको हमने बोला चलो ठीक है, यहाँ से हमने ये लाइन ज्वाइन कर ली, बोला चलो टाइम नोट करते हैं वापस से 3 घंटे का, कितना सेम उतना ही जितना यहाँ पर 3 घंटे का टाइम नोट किया था उतना ही टाइम नोट किया। तो यहाँ पर ये पहुँच गया सी पॉइंट पर, प्लैनेट कहाँ पहुँच गया 3 घंटे में, ये सी पॉइंट पर पहुँच गया। सी पॉइंट पर पहुँचने के बाद क्या हो गया, ये इसको हमने यहाँ पर ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिया सी को, और यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन को हमने इसका एरिया निकाल लिया। फिर से यही एक्टिविटी यहाँ पर भी रिपीट किया, तो इसको 3 बार रिपीट किया हमने 3-3 घंटे के लिए इंटरवल पर। तो हमको क्या पता चला कि जो तीनों शेडेड पोर्शन मिले हमको, ये तीनों के एरियाज अगर हम निकाल लें तो इनका तीनों का एरिया सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसके ऊपर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया दूसरा वाला, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन और जो प्लैनेट है उसके बीच में अगर हम लाइन ज्वाइन कर ले तो ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल एरियाज वो स्वीप करता है। मतलब 3 घंटे के अगर हम इंटरवल की बात करें तो हर 3 घंटे में ये इक्वल एरिया ही स्वीप करेगा। दो इनका दिखने में देखो ये अलग अलग शेप है, सबके शेप अलग अलग है लेकिन सबके एरियाज क्या है, सेम है, क्योंकि वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में उतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था केपलर का सेकंड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ में क्या कहा है, अभी इन्होंने बताया है द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लैनेट। मतलब अगर हम निकाल लें, अगर जो हमारा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या कि अगर ये प्लैनेट यहाँ से स्टार्ट हुआ और घूम कर वापस यहाँ पर आया तो इसको टाइम कितना लगता है, जैसे अर्थ को ये पूरा घूम के आने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और दूसरी चीज़ इन्होंने बात की है डिस्टेंस, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस निकालना है अभी सन और अर्थ के बीच में। तो ये अब यहाँ पर डिस्टेंस एक पर्टिकुलर रेडियस तो यहाँ पर है नहीं, हर बार अलग अलग रेडियस है यहाँ पर। तो ये क्या किया हुआ है ना, इसलिए मीन की बात की है। तो इनका मीन निकाल लो, जितने भी डिस्टेंसेस है सारे डिस्टेंसेस का मीन निकालो, और इनका इन दोनों चीज़ों का आपस में कुछ ना कुछ एक रिलेशन बताया है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब जितने पीरियड में जितने टाइम में वो रिवॉल्व करता है उसका स्क्वायर करो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन।
उनके जो क्यूब है डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस का क्यूब निकालो, तो ये जो दोनों वैल्यूज़ रहेंगी ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब चेंज इन, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, रेडियस भी चेंज हो रही है ना एक तरीके से, तो चेंज इन रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू द रिवॉल्यूशन पीरियड, मतलब जितने पीरियड में रिवॉल्व होता है उसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीरियड, रिवॉल्यूशन पीरियड और जो आपका चेंज इन रेडियस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर टी स्क्वायर जो है हमारा, टी जो है यहाँ पर ये हमारा पीरियड है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, और जो आर है हमारा एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन ये है। तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने की कोशिश करें तो हमको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर आर क्यूब, के आर क्यूब, ये हमको मिलता है। क्या मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, के आर क्यूब, ठीक है। ये हमको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के वहाँ पर अगर हमको यहाँ पर इक्वल टू साइन लाना है तो उसके लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म ऐड करनी पड़ती है, ये के है हमारा कांस्टेंट वैल्यू। अब ये आर क्यूब इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में लेफ्ट साइड पर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के। तो ये इक्वेशन हमको यूज़फुल होने वाला है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक स्टेटमेंट दिया है इन्होंने स्टैंडर्ड, जिसके ऊपर से हम लोग पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन ये भी निकाल सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमको हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में हमारा इतना ही। आगे का हम डिस्कस करेंगे, न्यूटन ने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था, ग्रेविटेशन दिया था, वो हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके लिए अभी के लिए इतना ही।